Alright class, it's June 2010 paper 6-3. The height x centimeter of a group of 82 children are summarized as follows. Summation of x minus 130 is minus 287 and standard deviation is 6.9. Find the mean height. Firstly, we are going to suppose that x minus 130 is equals to y. Alright. So basically the data given, it says summation of y is equals to minus 287. In order to find out the mean of y, the working formula is very simple. Summation of y divided by n. The value of summation of y, it's minus 287 divided by the value of n is given, it's 82. So 287 divided by 82, it will be minus 3.5, that is your mean value of y. Alright, we need to find out the mean value of x, so the working formula is x minus 130 is equals to y. That is the supposition. So if it's y means, that will be x mean, right? So we can say that x mean is equals to mean of y plus 130. Mean of y is minus 3.5 plus 130 gives you the value of 126.5. That is your first part answer. For the next part, we need to apply the working formula for standard deviation, and the working formula says summation of y square divided by n minus summation of y divided by n whole square. Missing values here, SD is 6.9 is equals to summation of y square is unknown divided by n is known minus summation of y divided by n, it's minus 3.5 and square of it. So after simplification, you will get summation of y square is equals to 4908.52. That is your final answer. Alright, and why is it so? The supposition we have made that x minus 130 is equals to y. Alright, so if it's summation of y, it's given in the question, that is minus 287. Similarly, if it says that summation of x minus 130 whole square, which is exactly the same thing, so that will be equals to summation of y square, and that is why we got our final answer. It's November 2010 paper 6-1. The weights in grams of a number of stones measured correct to the nearest gram are represented in the following table. आपके पास टेबल आ गया. Histogram is drawn with the scale of 1 centimeter represent 1 unit on the vertical axis which represents frequency density. अब यहाँ पर ये लिखा हो ना लिखा हो, यू नीड टू नो कि आपको कब ये निकालनी होती है. बहुत सिंपल सी बात है, जब आपके पास क्लास फिट चेंज हो जाए. यहाँ पर क्लास फिट आपकी 10 की आ रही है, यहाँ भी 10 की आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्लास फिट चेंज हो गई. ठीक है, यहाँ भी चेंज हो गई, यहाँ भी चेंज हो गई, यहाँ भी चेंज हो गई. जब आपकी क्लास फिट चेंज हो जाती है तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का वर्किंग फार्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल होता है, विच इज़ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. ऑलराइट, ये आपका वर्किंग फार्मूला हो गया. The 1 till 10 rectangle has a height of 3. Calculate the value of x and the height of the 51 till 70 rectangle. तो आपको 51 से 70 का जो रेक्टेंगल होगा उसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1. ऑलराइट, अब x के लिए उसमें मुझे दिया हुआ है द रेक्टेंगल एज अ हाइट ऑफ 3. तो मेरे पास मैं निकालूंगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो वर्किंग फार्मूला क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी विच इज़ 2x डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. तो 10 और 1 के बीच के जो नंबर्स होंगे आपके पास वो कंप्लीट 10 होंगे, क्योंकि आप 10 को भी काउंट कर रहे हो और 1 को भी काउंट कर रहे हो. ठीक है, आपके पास जो हाइट दी हुई है दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 10. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड x इज इक्वल्स टू 15. ये आपका पहले का आंसर. फॉर नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन वेट ऑफ द स्टोन्स. ऑलराइट, मीन का आपके पास जो वर्किंग फार्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ. यह आपका वर्किंग फार्मूला होता है मीन का. ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास x है दैट इज़ योर मिड पॉइंट. ऑलराइट, ये आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे. कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. पहले का अगर आप मिड पॉइंट देखोगे तो 1 + 10 11, 11/2 इट्स 5.5. उसके बाद 11 + 20 इट्स 31, 31 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 15.5. और मैं सबके मिड पॉइंट निकालता हूँ यहाँ पर. ऑलराइट, तो जो भी मैंने मिड पॉइंट निकाले इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से. बेटा अब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा. समीशन एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 2. अच्छा, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है दैट इज़ 15. तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा 30 इसकी.
ये आएगा मेरे पास 60, ये आ जाएगा मेरे पास 45, सबको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि x की वैल्यू है। अब मैंने मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो गया। पहला क्या रहेगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 30, उसके बाद क्या हो जाएगा 15.5 मल्टीप्लाई बाय 60, फिर क्या आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 45। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं भी हम। सारी मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डिवाइड किससे होगा, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो सारी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऐड कर लूँगा ये आएगा 30 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 15। ऑलराइट, ये सबको मैं कैलकुलेट करूँगा तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 26.6 ग्राम्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया एस्टिमेटेड मीन का। It's November 2010, paper 6-2. The weight in kilograms of 11 bags of sugar and 7 bags of flour are as follows. ये आपके पास आ गया सबका weight. Represent this information on a back-to-back stem and leaf diagram with sugar on the left hand side. Alright, तो पहले मुझे इसका टेबल बनाना पड़ेगा। अब मैं देखूंगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास क्या है। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ है 961 आ रही है, 968, 994, ऑल राइट, और मेरे पास 977, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं फ्लोर में देखूं तो मेरे पास 1.945, 97764। तो मुझे अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना होगा। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू मेरे पास आ रही है, वो आ रही है 1.94 को तो मैंने 194 ले लिया, ठीक है, वो मैं की में रिप्रेजेंट कर दूंगा। और लास्ट डिजिट मेरे पास आ रहा है 5, तो ये फ्लोर पे चल रहा है तो मैं यहाँ पर 5 एंटर कर दूंगा। इसके बाद मेरे पास आ रहा है 1941, तो पहले मेरे पास 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो पहले मेरे पास 1 आएगा, उसके बाद मेरे पास 5 आएगा। इसके बाद मैं देखूंगा और कौन सी वैल्यू आ रही है मेरे पास 94 के बाद। तो 94 के बाद और मेरे पास ये आ रही है 9। ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। मैं अब नेक्स्ट नंबर देखूंगा मेरे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट नंबर इज़ 195, ऑलराइट। अब 195 पर भी मेरे पास शुगर पे तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, शुगर पे कोई नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखूँ अगर तो 195 के बाद मेरे पास एक वैल्यू आ रही है विच इज़ 3। आगे देखें आप, अब आया 196। क्या 196 पे मेरे पास शुगर पे कोई वैल्यू आ रही है? तो ये आ रही है, एक 196 के साथ 1 आ रही है और एक 8 आ रही है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर शुगर पे 1 आ रही है और 8 आ रही है। और मेरे पास फ्लोर पे कहाँ आ रही है, 196 के साथ की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है और 4 आ रही है। तो मेरे पास आ रहा है 2 और मेरे पास आ रहा है 4। इसी तरह मैं कंप्लीट करूँगा अपनी टेबल को। ऑलराइट, ये मैंने टेबल बना दिया और अब मुझे यहाँ पर की रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, की रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो की मेरे पास क्या होगी, अगर ये लिखा हुआ है मेरे पास 196, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 और 4 8 ले लिया। चलें, मैंने यहाँ पर ले लिया 196 8 ले लिया और 197 मैंने 2 ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 1.968 kg फॉर शुगर, ठीक है, और मैंने क्या रिप्रेजेंट किया 1.962 kg फॉर फ्लोर। तो ये आपको लाजमी रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा आपको टोटल नंबर लिखने होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 रीडिंग आ रही है, मैंने 3 लिख दिया। फिर मेरे पास 1 की रीडिंग आई, फिर मेरे पास 2 की रीडिंग आई, फिर मेरे पास 1 की रीडिंग आई, इसके बाद कोई रीडिंग ही नहीं आई। यही काम मैं शुगर पे भी करूँगा। तो ये मैंने सब तरफ रीडिंग लिख दी। और आप इसको काउंट करोगे तो ये आपके पास टोटल इसकी नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी, तो आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला आ गया, स्टेम लीफ बन गया आपका। नेक्स्ट वन, फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द वेट्स ऑफ द बैग्स ऑफ शुगर। ऑलराइट, जो काम करना है मैंने किसके लिए करना है भाई, मैंने शुगर के लिए करना है। पहली चीज़ आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। वर्किंग फार्मूला अप्लाई करते हैं। वर्किंग फार्मूला सेज n plus 1 divided by 2, where n is what, n is the number of frequencies। तो आप ऐड करोगे सबको, so you will get the value 11। so n is 11 plus 1 divided by 2, 12/2, it's 6। तो आपको 6 टर्म को हाईलाइट करना है अपनी। अब आपने 6 वैल्यू को अपनी हाईलाइट करना है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी वैल्यू आ रही है। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ। ये मेरी वैल्यू बता रही है मुझे मीडियन के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, इसकी मेरा आंसर आएगा 1.989, ये आपका आंसर आएगा मीडियन का। उसके बाद आपको निकालना है इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो आपको निकालना पड़ेगा पहले अपर क्वार्टाइल, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q3 से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/4 टाइम्स n + 1। n आपके पास 12 है, मैंने वैल्यू प्लेस करी तो ये आ रहेगा 3 / 4 टाइम्स 11 + 1 12।
4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 3s are 9। अब मुझे नाइन्थ टर्म को देखना है बेटा। नाइन्थ टर्म काउंट करते हैं। नाइन्थ टर्म कहाँ से आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गई आपकी नाइन्थ टर्म। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.011 आ गया आपके पास अपर कोटाइल। ठीक है, फॉर लोअर कोटाइल दैट इज Q1। Q1 क्या हो जाएगा आपके पास? इट्स वेरी सिंपल, 1/4 ऑफ n+1। n आपको पता है कि आपके पास 11 है, सो इट्स 1/4 11 + 1 12, 4 3s are 12। अब आप थर्ड वैल्यू देखोगे यहाँ पर। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो आपके पास जो लोअर कोटाइल आएगा दैट इज 1.977। So what is your interquartile range? Interquartile is basically the difference. So you need to find out the difference of 2.011 minus 1.977. It gives you the value of interquartile range. दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, you will get the answer 0.034। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। Alright, it's December 2010, paper 6-3. Dilip measured the speeds x kilometers per hour of 70 cars on a road where the speed limit is 60 kilometers per hour. His results are summarized by summation of x minus 60 is 245. Calculate the mean speed of 70 cars. So for first part, you need to find out mean speed, right? So firstly, I will say that let x minus 60 is equals to y. Alright, so we can say that summation of y is equals to 245. I need to find out mean of y, and that will be equals to 245 divided by number of cars, that is 70. Simply divide it and you will get the value of mean, and this is equals to 245 divided by 70 gives you the value of 3.5. Once you have the value of y bar, so we can say that x minus 60 is equals to y, which we had supposed above. But if you are talking about y bar, so that will be x bar as well. And the value of x bar is equals to y bar is 3.5. When you shift negative 60 on the right side, it will be positive 60. And the value of mean of x is equals to 63.5, and that is your answer. For part 2, it says, his friend Sachin used values of x minus 50 to calculate the mean. Find summation of x minus 50. The working formula for mean for this part we are going to apply here is x mean is equals to summation of x minus b divided by n plus b. Alright, the mean value of x we had find out is 63.5 is equals to summation of x minus b. What is b? b is basically 50 divided by number of values of n is 70 plus b is 50. You can simplify to find out the value of x minus 50 here, and that is equals to 945. This is your answer for part 2. For part 3, it says the standard deviation of the speed is 10.6 kilometers per hour. Calculate summation of x minus 50 whole square. Alright, the working formula for standard deviation we are going to apply here is under root of summation of y square divided by n minus y bar whole square. If we write it in terms of under root of summation of y is what? Y is summation of x minus 50 whole square divided by n is what? N is 70 minus y bar will be 945, that is summation of x minus 50 divided by 70 and whole square. The value of standard deviation is known and it's 10.6. After solving, you will get the final value of summation of x minus 50 whole square, and that is 20622.7, which is equals to 20623, and that is your final answer. It's question from November 2010, paper 6-1. Anita made observations of the maximum temperature T degree centigrade on 50 days. आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, it's 50. Alright, her results are summarized by sigma t equals to 910 and sigma t minus t bar equals to square equals to 876, where t bar denotes the mean of the 50 observations. Calculate t bar and the standard deviation of the observation. Alright, आपको given क्या है? फर्स्टली आपको गिवन है समीशन ऑफ टी इक्वल्स टू 910
और आपको दिया हुआ है समीशन ऑफ टी माइनस टी बार होल स्क्वायर इक्वल्स टू 876। अगर मुझे टी बार निकालना है, टी बार इज़ वॉट, टी बार इज समीशन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन ऑफ टी आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 910 डिवाइडेड बाय एन इज़ वॉट, एन इज़ 50। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी बार विच इज़ इक्वल्स टू 18.2। तो ये तो आ गया आपका टी बार, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिंपली जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम यूज़ करेंगे। इट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 876 दैट इज़ गिवन डिवाइडेड बाय 50। ऑलराइट, सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ 4.19। ये आपका आंसर। It's June 11, paper 6-3. The following cumulative frequency table shows the examination marks for 300 candidates in a country A and 300 candidates in a country B. ये आपके पास टेबल आ गया. Without drawing a graph, show that the median for country B is higher than median for country A. Alright. First thing, हम CF के कर्व में cumulative frequency में median कैसे निकालते हैं? So median हमारे पास होता है total frequency का आधा. हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 300, और अगर हम इसका हाफ करें सो दैट लीड्स टू 150। ये जो आपके मीडियन की वैल्यू है 159, ये इससे पहले होगी, ठीक है। तो मीडियन आपका इसके आगे आ चुका है, इसको क्रॉस कर चुका है, और 35 से पहले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा मीडियन है, कौन से ग्रुप है, ये मेरा बी है, सॉरी, ये जो आपका मीडियन है ए का, ये आपका 20 से ज़्यादा है लेकिन ये 35 से कम है। हम यही काम करेंगे मीडियन बी के लिए। ऑलराइट, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 300 ही है तो 150 रहेगा। अब आप ये देखेंगे 150 हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, तो 150 आपके पास 144 को क्रॉस कर चुका है और 198 से पहले होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो मीडियन आएगा बी का, वो कहाँ लाई कर रहा होगा, वो लाई कर रहा होगा ग्रेटर देन 50 एंड लेसर देन 70। तो इन रेंजेस से आप देख सकते हो कि जो आपका मीडियन बी आ रहा है वो ग्रेटर है आपके मीडियन ए से। ये आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। फॉर सेकंड पार्ट इट सेज फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कंट्री ए हु स्कोर्ड बिटवीन 20 एंड 34 मार्क्स इंक्लूसिव। ऑलराइट, तो आपने 20 से लेके 34 के मार्क्स का इंक्लूसिव निकालना है। यहाँ पर यहाँ कितने लोग हैं, इट्स वेरी सिंपल, हम इन दोनों CF का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 159 माइनस 68 लीड्स टू 91। ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर आया। फॉर थर्ड पार्ट इट सेज कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ मीन मार्क फॉर कैंडिडेट इन कंट्री ए। नाउ इन थर्ड पार्ट इट सेज कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन मार्क फॉर कैंडिडेट्स इन कंट्री ए। तो मैंने ए का डेटा सेपरेट कर लिया। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर निकालूंगा फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम होगी 25। नेक्स्ट क्या आएगी 68 माइनस 25 विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 43। उसके बाद क्या आएगा 159 माइनस 68 इट्स 91। आफ्टर दैट 234 माइनस 159 इट्स 75। 260 माइनस 234 इट्स 26 एंड लास्टली 300 माइनस 260 इट्स 40। हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम करेगा वो होगा आपका एक्स, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए पहले हम यहाँ पर क्लासेस को डिफाइन करेंगे। अब गौर से देखिएगा, अगर ये लेसर देन 10 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास एक्स होगा वो 0 से जाके जा रहा होगा। लेसर देन 10 मतलब ये 9 तक होगा, ठीक है। ये 20 से कम है, कहाँ से स्टार्ट होगा ये, अब ये जाएगा आपके पास 10 से लेके, और 20 से कम है मतलब ये 19 तक होगा। इसी तरह ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट हो रहा होगा 20 से, लेसर देन इक्वल्स टू 35 नहीं है मतलब ये 34 तक होगा, ये इसकी क्लास आ रही है। उसके बाद अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 35 से जाएगा, उससे ग्रेटर है लेकिन 50 से छोटा मतलब 49 तक होगा। उसके बाद 50 से जाएगा लेकिन ये 69 तक होगा, और लास्ट वाला 70 से स्टार्ट होगा लेकिन ये 99 तक होगा। अब अगर आपने ये बना ली ना, इसके बाद हम इनके मिड पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ मिड पॉइंट्स। तो पहले का मिड पॉइंट क्या आ रहेगा बेटा आपके पास, 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 4.5। उसके बाद
10 plus 19 divided by 2, that will be 29 divided by 2, it's 14.5. उसके बाद 20 plus 34 divided by 2, it's 27. उसके बाद 35 plus 49 divided by 2, it's 42. उसके बाद 50 plus 69 divided by 2, it's 59.5. और lastly 70 plus 99 divided by 2, it's 84.5. ये आपके पास सारे मिड पॉइंट्स। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे समीशन एफ एक्स, सारे एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 4.5 प्लस 43 इंटू 14.5 और इन सबको लिखेंगे हम यहाँ पर और डिवाइड कर देंगे हम इसको टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 300 से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई एंड दैट विल सम अप टू 11270 डिवाइडेड बाय 300. So your estimated mean value is 37.6 और ये आपका आंसर है. It's June 11 paper 6-2. A sample of 36 data values x gave summation of x minus 45 is given and summation of x minus 45 is also given. Find the mean and standard deviation. पहला पार्ट आपका बहुत सिंपल है, जस्ट अप्लाई द वर्किंग फार्मूला x bar is equals to summation of x minus a divided by n plus a. वैल्यू प्लेस करते हैं, मेरे पास वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ x माइनस 45 डिवाइडेड बाय n इज़ 36 एंड a की जगह आ जाएगा माइनस 45. समीशन की आपको वैल्यू दी है, इट्स माइनस 148 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 45. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सॉरी ये माइनस नहीं है हमारे पास प्लस है, सो 148 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 45 यू गॉट द वैल्यू ऑफ मीन 40.88 which is equals to 40.9. ये आपके पास मीन का सिंपल आंसर आ गया. फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव द वर्किंग फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस 45 आपको गिवन है, इट्स 3089. सो 3089 डिवाइडेड बाय 36 माइनस मीन आपके पास कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल, माइनस 148 डिवाइडेड बाय 36 और इसका होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया एंड यू गॉट द वैल्यू 8.30. ये आपके पास पार्ट 1 के आंसर्स. पार्ट 2 अब क्या कह रहे हैं, वन एक्स्ट्रा डेटा वैल्यू ऑफ 29 वॉज एडेड टू द सैम्पल. पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ आपके पास जो n की वैल्यू है, अब ये 36 नहीं है, अब ये आपके पास 37 हो गई. ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 37 वैल्यूज़. ठीक है भाई, तो अब आप ये देखें कि चेंज क्या हुआ. मेरे पास सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वर्किंग करनी पड़ेगी. वो वर्किंग क्या है, आपके पास जो वैल्यू थी 3089, अब हम इस 3089 को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 36 की थी. अब आपकी डेटा वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो आप क्या ऐड करोगे, इसका आंसर बहुत सिंपल है. आपके पास जो डेटा ऐड हुआ है वो है 29, तो आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दोगे. ठीक है, आप क्या करोगे, आप करोगे 29 माइनस 45 और इसका स्क्वायर. सो 29 माइनस 45 लीड्स टू 16, स्क्वायर इज़ 256. सो द न्यू वैल्यू ऑफ सम इज़ 3089 प्लस 256 इज़ इक्वल्स टू 3345. ऑलराइट, ये आपके पास सबमिशन की वैल्यू आ रही है. ऑलराइट, नाउ फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन वर्किंग फार्मूला वी नो दैट व्हाट इज़ द वर्किंग फार्मूला. जो आपका सबमिशन है वो अब आ चुका है 3345 माइनस, आपका मीन सेम नहीं रहेगा, आपका मीन भी मॉडिफाई होगा. वो क्या होगा, देखें जी, आपके पास क्या लिखा हुआ था, आपके पास लिखा था सबमिशन ऑफ x माइनस 45, ये लिखा हुआ था. हम x की जगह प्लेस क्या करेंगे, जो हमारा सैम्पल वैल्यू तो दैट मीन्स 29, तो मैं जब 29 माइनस 45 करूँगा व्हाट आई गॉट इज़ नेगेटिव 16. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मीन के सम में मैंने इसको ऐड करना पड़ेगा. तो नाउ इट विल बी, आपके पास था नेगेटिव 148, उसमें आपकी नई वैल्यू आ गई नेगेटिव 16. ये डिवाइड होगा आपका अब 37 से और इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी डिवाइड होगा 37 से. सिंप्लीफाई करेंगे इसको एंड यू गॉट द फाइनल आंसर इज़ 8.41. ये आपका न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया.
तो याद रखें, जब आपके पास डेटा वैल्यू ऐड होगी तो आपको न्यू सबमिशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आपके एसडी और मीन को इफेक्ट करेगी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8.41। June 2011, paper 6-3. Red Street Garage has 9 used cars for sale. Fairville Garage has 15 used cars for sale. The mean age of the cars in the Red Street Garage is 3.6 years. तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि मेरे पास मीन दिया हुआ है रेड स्ट्रीट गैराज का, जो कि है 3.6 ईयर्स, एंड द स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 1.925 ईयर्स इन फेयरव्हील गैराज। तो मुझे फेयरव्हील के बारे में क्या दिया हुआ है, सबमिशन ऑफ एक्स मुझे यहाँ पता है, दैट इज 64, एंड सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 352। ऑलराइट, फाइंड द मीन एज ऑफ ऑल 24 कार्स। तो अगर मुझे दोनों का मीन निकालना है तो मेरे पास होना क्या चाहिए, मीन इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय एन। कितनी है मेरे पास टोटल, 15 + 9 लीड्स टू 24। मुझे यहाँ पर सम फाइंड करना है दोनों का, रेड का और फेयरव्हील का। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रेड की। अब रेड के बारे में आपको मीन दिया हुआ है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम डिवाइडेड बाय एन। मीन आपको दिया हुआ है 3.6, सम मुझे नहीं पता लेकिन एन की वैल्यू मुझे पता है 9। मैं सम निकाल लूँगा रेड वाली कार्स का, इट विल बी 3.6 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 32.4। ठीक, इसी तरह जब मुझे फेयरव्हील की बात की जाएगी तो फेयरव्हील में आपको सबमिशन पता है और वहाँ पर आपके पास सबमिशन ऑफ एक्स कितना आ गया, 64। तो अगर मैं दोनों का सम निकालूं तो सम क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों को ऐड कर लूँगा, दैट मीन्स 32.4 प्लस 64 एंड इट्स सम अप टू 96.4। अब मैं मीन निकाल सकता हूँ, सो मीन इज इक्वल्स टू 96.4 डिवाइडेड बाय 24 and you will get the value 4.016 और 4.02। ये आपके पास मीन का आंसर आ गया। पार्ट 2, इट सेज फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 24 कार्स। अब आपको फेयरव्हील का तो आपको सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है, लेकिन रेड स्ट्रीट का आपको सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ summation of x square divided by n minus summation of x divided by n which is your mean, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एच डी की वैल्यू मालूम है, दैट इज़ 1.925। सो 1.925 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको नहीं पता, डिवाइडेड बाय रेड कितनी है आपके पास, 9 रेड कार्ड्स है, माइनस मीन हमें दिया हुआ है इसका, दैट इज़ 3.6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आपके पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 150। ऑलराइट, ये किसका आया आपके पास, ये आपके पास रेड कार्ड्स का आ गया। अब मैं निकाल सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 24 कार्ड्स, जो कि मुझे फाइनल निकालना है। ठीक है ना, फार्मूला वही अप्लाई किया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ समेशन एक्स स्क्वायर दोनों का आएगा, इसका भी आने वाला है और इसका भी आएगा। ठीक है, दैट विल बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 150 प्लस 352 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्स आर 24। ऑलराइट, उसके बाद मीन कितना आया था, मीन हमारे पास आया था 4.02 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 2.187, जो कि बराबर होगा आपके पास 2.19 के। ये आपका आंसर आ गया। Alright, it's November 2011, paper 6-1. The question says the values x in a particular set of data are summarized by summation of x minus 25 is 133 and summation of x minus 25 square is 3762. The mean x is 28.325. You need to find out the standard deviation. Alright, so firstly I need to suppose that let x minus 25 is equals to y. With respect to this supposition, we know that summation of y is equals to 133 and summation of y square is 3762. Alright, we need to find out standard deviation. The working formula to find out the standard deviation is under root of summation of y square divided by n minus summation of y divided by n whole square. Currently we don't have the value of n here, alright.
So firstly, we need to find out the value of n. We have the supposition that x minus 25 is equals to y. If we introduce the mean sign here, that will be the working formula, right? So I can say that the mode of x, the mean of x is 28.325 minus 25, and y bar is what? Y bar is summation of y divided by n. Now we have the value of y bar, and that is equals to summation of y, that is 133 divided by n is equals to 28.325 minus 25 leads to 3.325. So you can find the value of n. It will be 133 divided by 3.325. It gives you the value of n, and that is equals to 40. Alright, once we had the value of n, we can easily find the standard deviation. Now summation of y square is known, that is 3762 divided by 40, minus summation of y is known, that is 133 divided by 40, and square of it. Simplified, and you will get a standard deviation which is equals to 9.11, and that is your first part answer. For next part 2, we need to find out summation of x square, but the good news is we have the standard deviation value. So I'm going to apply the working formula again. So standard deviation is equals to under root of summation of x square divided by n minus summation of x divided by n and whole square. The value of standard deviation, it's 9.11, is equals to under root summation of x square is what we are looking for, divided by n is number of terms, that is 40, minus summation of x divided by n, that is basically mean, it's 28.325, and square of it. Simplify the values, you will get the value of summation of x square. So the value for summation of x square after rounding off, it will be 35412, and that is your final answer. It's November 2011, paper 6-1. The weights of 220 sausages are summarized in the following table. You have weight and you have cumulative frequency. State which interval the median weight lies in. Alright. For first part, in order to find out the median, the working formula we have is total frequency divided by 2. Alright. So total frequency is 220 divided by 2 leads to 110. Now in which group we are having 110? In this group, right? तो मीडियन आपका लाई कर रहा है इन दो ग्रुप्स के बीच में, यहाँ क्रॉस कर चुका है लेकिन यहाँ इससे पहले है. तो आपका जो आंसर होगा मीडियन का, दैट इज इक्वल्स टू फ्रॉम 45 टिल 50 ग्राम्स, ये आपका आंसर है. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट. In second part, it says find the smallest possible value and the largest possible value for the interquartile range. What is interquartile? The difference of upper and lower. तो पहले हम निकालते हैं upper quartile, that is Q3. It's 3/4 of your total frequency 220. Simplify किया आपने, that gives you the value of 165. देखें 165 कहाँ पे लाई कर रहा है. 165 50 से क्रॉस कर चुका है और 210 से पहले होगा. तो जो आपकी इंटरकोटाइल रेंज होगी, दैट लाइज बिटवीन 50 एंड 60. ऑलराइट, 165 है, ये आपका अपर कोटाइल आ गया. फॉर लोअर कोटाइल वी हैव 1/4 ऑफ योर टोटल फ्रीक्वेंसी 220. सो 220 डिवाइडेड बाय 4, इट्स इक्वल्स टू 55. अब देखें 55 कहाँ पे लाई कर रहा है. 55 इसके बीच में लाई कर रहा होगा. दैट मीन्स आपका जो Q1 होगा वो 40 क्रॉस कर चुका है और 45 से पहले है. अब आपको जो निकालना है वो है इंटरकोटाइल, और इंटरकोटाइल की भी आपको चाहिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट. ऑलराइट, तो हम यहाँ पर दो कॉलम बना रहा हूँ मैं. इंटरकोटाइल निकालना है, एक मेरे पास लार्जेस्ट आनी चाहिए, ठीक है, और एक इंटरकोटाइल मुझे चाहिए जो कि मेरे पास स्मॉलेस्ट आनी चाहिए. यहाँ पर मैथ्स का अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट कब आएगी? जब मैं 50 और 45 लूँगा, ठीक है. तो जब मैंने 50 और 45 लिया तो जो यहाँ पर 50 और 45 लिया, सो आई गेट द स्मॉलेस्ट इंटरकोटाइल रेंज, दैट इज़ 5. और लार्जेस्ट कब आएगी? लार्जेस्ट तब आएगी जब मैं 60 और 40 लूँगा. 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20. ये मेरी लार्जेस्ट आ गई. नेक्स्ट वन, स्टेट हाउ मैनी सॉसेजेस वेट बिटवीन 50 एंड 60 ग्राम्स. 50 और 60 के बीच में, इनके बीच में कितने आएगा,
So for part 3 you need to subtract these two. 60 पर कितना है आपके पास 210, 50 पे कितना है आपके पास 160, सब्ट्रैक्ट किया यू विल गेट 50, ये आपका आंसर. लास्ट वन, ऑन ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द वेट्स ऑफ द सॉसेजेस. तो आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है. सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. फ्रीक्वेंसी पहले आ गई आपके पास 0 और 20 का आएगा 20, 50 माइनस 20 इट्स 30, 100 minus 50 it's 50, 160 minus 100 is 60, 210 minus 160 50 and 220 minus 10 it's 10. ये आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी आ गई. अब आप अपनी क्लास इंटरवल को देखें. 20 से लेके 30, 30 से 40, 40 से 45, 45 से 50, फिर 60 एंड देन 70. मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर क्लासेस डिफाइन करता हूँ. ठीक है, ये आपके पास होगा फ्रॉम 0 to 20, ये आएगा 20 till 30, this one 30 till 40, this one 40 till 45 and then 45 till 50, 50 till 60 and then 60 till 70. इससे आपको एफडी निकालने में बड़ी हेल्प मिल जाएगी. अब मैं एफडी की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की फार्मूला अप्लाई करता हूँ. फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. पहली फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ कितनी है आपके पास 10, लेकिन पहले में आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये आपका आ गया 0. दूसरा फ्रीक्वेंसी 20, क्लास विड्थ कितनी है 20 till 30 इट्स 10, तो 20 अपॉन 10 इट्स 2. उसके बाद देखें 50, क्लास विड्थ कितनी है आपके पास 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 5. उसके बाद देखें फ्रीक्वेंसी इज़ 50 एंड क्लास विड्थ इज़ 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 10. उसके बाद फ्रीक्वेंसी 60, क्लास विड्थ इज़ 5 दैट मीन्स इट्स 12, 60 अपॉन 5. उसके बाद 50 एंड क्लास विड्थ इज़ 10, इसका मतलब ये आ गया 5. और लास्टली 10 डिवाइडेड बाई 10 इट्स 1. ऑलराइट. अच्छा, ये तो आपके पास 5 आया है, ये आपके पास 5 नहीं होगा. दैट विल बी 30 अपॉन 10 लीड्स टू 3. ये इसकी एफडी आ गई. अब हम यहाँ पर रफली हिस्टोग्राम बनाएंगे. ऑलराइट, तो ये आपका एक मैंने ग्रिड बना दिया. ये मैं सब रफली बना रहा हूँ, आपने इसको फेयर करना है. ठीक है, अब आपके पास स्टार्ट कहाँ से होगा फ्रॉम 20 till 30. कहाँ पर आएगा आपके पास कितनी एफडी 2 है, तो 20 till 30 पर आपके पास 2 पर एक बार आएगी. सो दैट विल बी योर फर्स्ट बार. ऑलराइट, उसके बाद आपकी बार कहाँ जाएगी फ्रॉम 30 till 40 एफडी इज़ 3, तो 30 till 40 पर आपके पास 3 पर जाएगी. 30 till 40 ये आ गया आपके पास 3 पर. ऐसे मैंने बाकी को कंप्लीट करना है. ये आपका हिस्टोग्राम बन गया सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के साथ और सारी क्लास इंटरवल के साथ. ये आपका फाइनल आंसर है. It's November 2011, paper 6-2. It says find out the mean and standard deviation. All right. So for mean, we need to apply the working formula, that is sum divided by n. So you need to add all the values and divide it by the number of values to find out the mean here. So the summation is 653.8. When you divide it by 11, you will get your mean, and that is 59.4. That is your first part answer. For standard deviation, we need to apply the working formula for standard deviation, and the working formula says that summation of x square divided by n minus x bar whole square. We have the value of x bar. Now we need to find out summation of x square. For this, first I need to find out the square of all the values. Alright, so we had find out summation of x square by squaring all the values, add them to get summation x square. Substitute the values in that working formula and find out the value of your standard deviation. It is 7.6 and that is your answer.